Can you listen me? I am Dr. Farad from Behavior Sciences. Zara, can you listen me, beta? Yes, okay. Thank you everyone. Thanks. Assalamu alaikum. How are you? Everyone is fine? Okay. My voice is clear? Yeah, okay, thank you. Now I am starting my lecture. Our today's topic is emotional intelligence. What is emotional intelligence? What is intelligence? Uh, There are two types of intelligence. One is rational and other is emotional. Rational, all of you know, rational means where there is some logic, there is reasoning, that is called the rational intelligence. And emotional intelligence, if I will tell you the definition later on, you will come to know emotional intelligence is the intelligence which is flexibility in your intelligence. Okay? Modification and flexibility. With the logic and reasoning, you do some modification and flexibility that is called emotional intelligence. All of you know about Barack Obama, first African American president. अफ्रीकन वहाँ पे आपको पता है अमेरिका में दे आर वेरी बाइस्ड वो काले गोरे का बहुत डिफरेंस रखते हैं अमेरिकन यू नो अबाउट न्यू गवर्नमेंट लेकिन वो बराक ओबामा 8 इयर्स रहा है 2 टाइम्स सिलेक्ट हुआ है बट वाज द क्वालिटी आईक्यू उसका 130 था रैशनल इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें आईक्यू की बात करें तो दैट वाज 130 above average not too not gifted not superior okay it was just above average तो उसके बारे में मार्कस ने कहा था if I had to point at one thing as the reason of his success I would say that his ability to control his emotions that is the emotional intelligence how you control your emotions आप मैनिपुलेट नहीं होने देते किसी से अपने इमोशंस को और अपने इमोशंस को प्रॉपरली यूज करते हो फॉर योर ओन एडवांटेज ओके to give the benefit to other people and also give the benefit to yourself by using your emotions that is emotional intelligence. Emotional intelligence, the capacity and the ability of individual to put the emotion under the control of reason and to use them to his advantage. As I said, that rational intelligence and emotional intelligence both are semi-different. आई एम सेइंग सेमी डिफरेंट नॉट टोटली डिफरेंट आप इनको बिल्कुल अलग-अलग ये नहीं कह सकते कि एक इंसान है उस वो लो आईक्यू का है और वो इमोशनली बहुत इंटेलिजेंट हो जाएगा नहीं ऐसा नहीं होता कैन यू लिसन मी पीटर as I said can you listen me dear students yes okay both intelligence are semi-different. Semi-different mean it doesn't mean that one person if he has low IQ तो वो emotionally बहुत intelligent हो सकता है या ऐसा इंसान जो कि बहुत high IQ का है और on other hand बहुत हाई आईक्यू का है और इमोशनली भी बहुत इंटेलिजेंट होगा ऐसा भी नहीं होता दोनों चीजें सेमी डिफरेंट हैं No, your
IQ is 50% एनवायरमेंटल में आपकी पेरेंटिंग, स्कूलिंग, योर सोशल फैक्टर्स दैट अफेक्ट, एंड 50% DNA. And emotional intelligence basically that is totally from your experience, from your that is learned, acquired. आप टाइम के साथ साथ इसको इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो एट योर टाइम. जब आप यू विल बिकम इन माई एज, यू विल फील कि अब आपकी यू आर इमोशनली मोर इंटेलिजेंट, आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना जान जाते हो. दैट इज आपको जो एनवायरनमेंट है और सोशल फैक्टर है वो ये सिखा देते हैं. इज इट ओके? नो, इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली motivation, its component motivation, self esteem, decision making, commitment, interpersonal awareness is very important. Empathy building obviously that is the best tool for all doctors, but on other hand that tool is not for doctor, for everyone. Empathy is very important. Now, component of emotional intelligence. First component is knowing one's self-awareness. आप खुद से अवेयर हो, अपने आप से अवेयर हो कि you know about your feeling, know about your emotions. If you know and properly understand your feelings, जैसे बुले शाह कहते हैं बंदिया अपने आप नु जान, that is self awareness. पहले अपने आप को जानोगे तो दूसरों को जानोगे. हम दूसरों को पहले जानने की कोशिश करते हैं, अपने आप को नहीं जानते. तो सेल्फ, और उसका क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होते हैं कि इफ यू डोंट नो अबाउट योर फीलिंग्स एंड डोंट नो अबाउट योर इमोशंस, आप प्रॉपर डिसीजन नहीं करोगे. योर कैरियर, आप अपना कैरियर चूज करने लगते हो, और हायर इश्यूज होते हैं, मैरिज इश्यू होता है. तो एट दैट टाइम इफ यू डोंट नो अबाउट योर फीलिंग एंड इमोशन कि आप कौन सा कैरियर आपके लिए सूट करता है, किस इंसान से आप प्रॉपरली यू ट्रूली लव, अगर आप ये अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप प्रोज एंड कॉन्स देखते हो कि मुझे इससे शादी करनी है या ये कैरियर चूज करना है तो इसका क्या एडवांटेज है, अगर इसको प्रॉपरली आप अवेयर नहीं होगे तो हाउ यू कैन डिसाइड. The second is managing emotion. Managing emotion is very important thing. As the Aristotle said, आपको पता है एरिस्टोटल ने कहा था to be angry with the right person at the right degree at right time for the proper for the right purpose and in a right way. ठीक है, राइट वे में भी होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर डिग्री पे होना बहुत जरूरी है, प्रॉपर टाइम पे होना बहुत जरूरी है. इफ यू आर एंग्री विद समवन, आप आपको बहुत गुस्सा आ गया है, किसी बात पे गुस्सा आ गया है, किसी मीटिंग में हो, किसी फंक्शन में हो, किसी ने आपको कुछ ऐसी बात कह दी है, अब आप आपका दिल तो कह रहा है, आपका दिमाग, आपका दिल दिल बेसिकली ये एक हम बहुत लेमन लैंग्वेज है कि दिल का वर्ड यूज करते हैं. दिल बेचारा तो कुछ नहीं करता, बेसिकली एवरीथिंग इज इन योर ब्रेन. ओके, तो अब वो जो आप आपकी इड कह रही है, आपका इमोशन कह रहा है, यू आर इन एंग्री कि बस इसको अभी सुना दो, इसको अभी मार डालो, लाइक इस तरह का आपका इमोशन आ रहा है, एंगर का इमोशन आ रहा है. नो, यू मस्ट नो हाउ टू मैनेज योर इमोशन. आपको गुस्सा करना है, कहाँ भी करना है, प्रॉपर वे में करना है. और आई एम नॉट सेइंग कि गुस्सा करना ही नहीं है, गुस्सा ना करना दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. ऑब्वियसली आपका इमोशन है, आपने डिस्प्लेसमेंट करनी है, डिफेंस मैकेनिज्म यूज करना है अपना, दैट इज ऑब्वियसली बहुत इम्पोर्टेंट है फॉर योर हेल्थ. तो आप बट
You have to use this emotion in a proper way, in at the proper person, and at the right time. That time is not the right time. कि in front of many people अगर आप अपने emotions को, अपने anger को explore करोगे तो आप अपने impression खराब करोगे. Is it okay? Understand? This is managing emotion. How you are managing emotion. Understood? No. The third component is motivating oneself. That is a very important component. आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? ऑब्वियसली आप पहले गोल चूज करोगे. आप कोई ना कोई गोल बनाओगे कि आई हैव टू अचीव दिस. उस गोल को अटेन करने के लिए देयर आर लॉट ऑफ हर्डल्स. इज इट ओके? देयर आर हर्डल्स, देयर आर फेलियर्स. आप उन फेलियर्स और हर्डल्स को क्रॉस कैसे करोगे? अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे? हाउ मच रेजिलियंस यू हैव. ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि अपने आप को मोटिवेट करना है. तो यू कैन सी कि दिस इज द मोटिवेशन. इफ समवन इज गोइंग डाउन और जंपिंग डाउन, तो उसको मोटिवेशन, उसको पता है, प्रोज एंड कॉन्स पता है, बट वो क्या है कि वो अपने आप को मोटिवेट करेगा हाउ टू अचीव दिस गोल. नो, रिकॉग्नाइजिंग इमोशन इन अदर, ये फोर्थ कंपोनेंट है. ऑब्वियसली आप इमोशन, इफ यू नो अबाउट योर ओन इमोशंस देन यू कैन रिकॉग्नाइज अदर इमोशंस. आपको पता है कि इफ यू आर एंग्री और यू आर सैड तो आपका मूड डाउन होता है. अगर किसी दूसरे का मूड डाउन है, ही इज फीलिंग लो, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड. आप रिकॉग्नाइज कर लोगे इस इमोशन को इफ यू नो अबाउट योर ओन इमोशन. ओके, आप इसको रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है. सपोज योर फ्रेंड गॉट अ बैड न्यूज फ्रॉम हर होम. अब आप क्या करते हो? आप रूम में आते हो, यू आर एक्साइटेड फॉर नथिंग, और फॉर सम लिटिल थिंग. और अगर वहां उसके सामने आप अपनी एक्साइटमेंट शो करना शुरू कर देते हो, इन स्पाइट ऑफ without judging or without recognizing her emotion that she is in sad mood, what will happen? Obviously it will give, that is not a emotional intelligence. आपकी एम्पैथी नहीं बिल्डिंग होगी. ठीक है, तो यहाँ पे एम्पैथी बिल्डिंग के लिए आप इमोशंस को अंडरस्टैंड करोगे, दूसरे के इमोशंस को रिकॉग्नाइज करोगे. Now the fifth component is your handling emotions. कैसे रिलेशनशिप, आप कैसे रिलेशनशिप को हैंडल करोगे? रिलेशनशिप हैंडलिंग इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. आपके लीडर्स, आपके टीचर्स, फ्रेंड्स, colleagues, family members, we all are handling the relations. How we handle these relations, that is the guts. गट्स ये नहीं है, ये रिलेशन जो अल्लाह ताला ने बना दिए हैं वो तो ऑब्वियसली हैंडल करने होते हैं, बट आप इसको कितने अच्छे तरीके से हैंडल करते हो. how many people are satisfied, how many people are happy with your relationship, and how many people, how, no, how you are commanding. आप ये नहीं है कि आप बिल्कुल, अगेन आई एम, कि आप बिल्कुल डाउन साइड पे हो जाओ कि उन रिलेशंस को सेटल करने के लिए या उन रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए खुद को किल कर दो. दैट डजंट मीन, दैट इज नॉट इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके, अपने आप को किल नहीं करना. ठीक है, यू आर हैंडलिंग द इमोशन. इफ यू आर इमोशनली इंटेलिजेंट, you are good, having good resilience, good leadership qualities. कुछ मनवा रहे हो, कुछ मान रहे हो. ठीक है, not everything के आप सब कुछ ही मानो. Is it okay? 5 component: knowing own emotions, self awareness. Second is managing emotion. Third is motivating
oneself, yourself, and recognize. Fourth is recognizing emotion in other. Fifth is handling emotion. Understand? Any problem? Up to here? Any problem? Any problem, beta? No. No, come. No. I'm coming for neuroanatomy. थोड़ा सा न्यूरोएनाटमी का आपको बता देती हूँ. Basically, this is your frontal lobe. This frontal lobe which makes you ashraful makhlukat, which is different in animal and human. यहाँ पे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है. प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, फ्रंटल लोब टोटली क्या है? रीजनिंग, लॉजिक, रैशनैलिटी, मोरालिटी, मोटिवेशन, स्पीच. इट मीन्स कि कंटेंट जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि IQ एंड EQ बोथ लाइज हियर. ओके, अब क्या है यहाँ पे आपकी जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है अगेन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: डॉर्सोलेटरल, वेंट्रोमीडियल एंड ऑर्बिटोफ्रंटल. बेटे मुझे इतनी अच्छी कोई डायग्राम नहीं मिली जिसमें मैं सारे पार्ट्स को प्रॉपरली बता सकूं, लेकिन ये कि जस्ट अबव योर नोज एंड योर ऑर्बिट, दैट पार्ट इज ऑर्बिटोफ्रंटल. ऑर्बिटोफ्रंटल और फिर डॉर्सोलेटरल आता है, वेंट्रोमीडियल आता है. जी, तो कोई बात नहीं, खुद ही चलाई थी, कोई डजंट मैटर. नो, अब आपके क्या है कि प्री फ्रंटल का आपका, यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि प्री फ्रंटल में आपकी 3 पार्ट्स होती हैं: ऑर्बिटो फ्रंटल, देन dorsolateral, ventromedial. Dorsolateral is the part which tell you कि what is wrong, what is right, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. Your id says कि आपका कोई प्लेयर जोन होता है जो आपको कहता है अभी के अभी ये चीज अचीव कर लो, अभी के अभी आप ये काम कर लो. बट अगेन वही बात है कि आपने उसको मैनेज करना है. अगर आपको यू आर एंग्री या हैप्पी, एक्साइटेड, आपको पता है कि मैंने अपनी एक्साइटमेंट कहाँ पे शो करनी है, एंगर कहाँ पे शो करना है, लव, व्हेन टू शो योर लव, व्हेन टू शो योर हेट. ओके, आप, आई एम नॉट सेइंग कि आप बिल्कुल हाइड कर लो इन इमोशंस को. हाइड नहीं करना, आपने इनको प्रॉपर पर्पस के लिए प्रॉपर वे में एक्सप्रेस करना है. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. तो क्या है ये आपका राइट और रॉन्ग कि क्या चीज कहाँ पे गलत है, नॉर्म्स एंड वैल्यूज जो होती है आपकी, वो आपका डॉर्सोलेटरल बताता है. वेंट्रोमीडियल है, दैट टेल्स यू अबाउट इमोशंस. आप क्या रिकॉग्नाइज करते हो इमोशंस इन अदर पीपल, दैट इज योर डॉर्सो वेंट्रोमीडियल. Then orbitofrontal. Orbitofrontal is that which tells you the pros and cons. किसका, इस चीज का क्या फायदा है, इस चीज का क्या नुकसान है. लाइक सपोज आप क्लास में हो, क्लास में टीचर आपको डांट देती है, डांटने के बाद आपका आप बहुत एंग्री हो और अपना एंगर शो करना चाहते हो टीचर के साथ. बट यू नो कि इसका क्या प्रॉस है, इन क्या कॉन्स है, इसका क्या नुकसान है, कि एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है. सो यू मैनेज योर इमोशन एट दैट टाइम. दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस. ये आपको ऑर्बिटोफ्रंटल जो लोब है, प्री फ्रंटल का ऑर्बिटोफ्रंटल पार्ट, दैट टेल्स दैट बेसिकली मैनेज इट. गोल्डमैन एस्पेक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? Knowing one emotion, self-awareness, and recognizing an emotion when it occurs. When it occurs. Okay?
सेल्फ अवेयरनेस है रिकॉग्नाइजिंग एन इमोशन व्हेन इट अकर, मैनेजिंग इमोशन। द सेकंड पार्ट इज आपका इमोशन आ गया, आप इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, अब आपने मैनेज करना है, हैंडल करना है, हैंडल करना है in a fashion to build on self awareness, or you can manage it, motivate yourself. No, this is a challenge. बेसिकली ये चैलेंज होता है कि अपने आप को बहुत ज्यादा गुस्सा आया है किसी पे, या आपको ठीक है बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो क्या है आपका मोटिवेट आपने अपने आप को करना है, नहीं अभी मैंने नहीं बोलना, अभी मैंने इसके साथ फाइट नहीं करनी, दिस इज नॉट द प्रॉपर टाइम, इसका बहुत ज्यादा मुझे डिसएडवांटेज हो सकता है, मेरा इंप्रेशन खराब हो सकता है, दैट इज योर मोटिवेशन, you are motivating yourself, you are controlling your emotion and motivating yourself, recognizing emotions in other, again uh, empathy, appreciation of difference in people and sensitivity to others feeling. आप दूसरों की फीलिंग को फील करो, दैट आई वाज सेइंग कि आप आपका रूममेट या आपकी फेलो, आपकी फ्रेंड कोई सैड है, आपके पेरेंट्स सैड है, तो आप इमोशंस के रिकॉग्नाइज करो, एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, दैट इज बेटर रादर देन दैट कि आप इमोशनल इलिटरेसी शो करो। हैंडलिंग इमोशंस, relationship and managing emotion others, obviously that is again an important part. Difference between IQ and EQ. IQ क्या है? इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, EQ इमोशनल कैपेसिटी है। IQ deals with reason, logic and database alone, largely innate inherit, और जो EQ है डील्स विद द फीलिंग, इमेजिनेशन, इंट्यूशन। इंट्यूशन क्या होती है? ऊपर से कोई आपकी सोच आ जाती है, ये दैट इज बेसिकली कलेक्टिव अनकॉन्शियस। कलेक्टिव अनकॉन्शियस आपके अनकॉन्शियस में कोई चीज आ जाती है, एंड दैट इज योर इंट्यूशन। फैंटेसी, पेशन, morality, motivation, communication, largely it is largely learned. EQ is learned and acquired. रिसर्च पता क्या बताती है? रिसर्च टेल्स दैट फीमेल्स हैव, मेजॉरिटी फीमेल्स, आई एम नॉट सेइंग 100%, दैट इज रिसर्च हमेशा आपको पता है जो होती है वो आपको एक फिगर देती है, एक नंबर देती है। मेजॉरिटी फीमेल्स दैट have good EQ and majority males, I am not saying 100%, and majority male have high IQ. बेसिकली आपका जो लिम्बिक सिस्टम है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर EQ। जो डेंड्रॉइड एंड न्यूरॉन कॉम्प्लेक्सिटी है वो फीमेल में लिम्बिक सिस्टम एंड द डोर्सम ऑफ योर फ्रंटल लोब दैट इज इंक्रीज्ड इन फीमेल, और मेल में क्या है कि जो फ्रंटल लोब है वहाँ पे डेंड्रॉइड कॉम्प्लेक्सिटी इज इंक्रीज, दैट इज दैट्स वाई क्या था डेफिनेशन में भी हमने कहा था रीजन एंड लॉजिक। जो EQ है इसमें आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस है, अगेन मैंने आपको बताया था सेमी डिफरेंट, not totally different. It doesn't mean that the person who has very high EQ has low IQ, and it doesn't mean that very high IQ person have very high EQ. Mostly it is seen that the people who have very high IQ, they have moderate EQ, not very high. EQ उनका अच्छा होता है, लेकिन EQ उनका बेस होता है विथ एज इंक्रीज अच्छा हो जाता है, बिकॉज रीजन एंड लॉजिक उनका इंक्रीज हो जाती है, रीजनिंग हो जाती है, लॉजिक हो जाता है, प्रीवियस जो प्रैक्टिस होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस होते हैं उससे वो कोरिलेट कर लेते हैं। लेकिन मोस्टली ये भी देखने में आया, रिसर्च कहती है कि जो हाई IQ वाले लोग होते हैं वो स्ट्रेसफुल कंडीशन को
अच्छा हैंडल नहीं कर सकते, प्लस कन्फ्रंट करते हैं फेस टू फेस, मैनेज नहीं कर सकते इमोशंस को, फेस टू फेस फेस कन्फ्रंट करते हैं, बट विद एज दे मैनेज इट। ईक्यू, जिनका ईक्यू अच्छा होता है वो स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, और आईक्यू वाले बुक स्मार्ट होते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट, दे हैव गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोगों के साथ उनके रिलेशनशिप अच्छे होते हैं। दे नो इंट्रापर्सनल रिलेशनशिप मीन्स, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस ये होती है कि आप अपने आप को जानते हो, और इंटरपर्सनल, obviously you are recognizing, if you are recognizing emotion in yourself, then you can recognize emotion in other people. Okay, understand? समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? किधर हो? ओ सॉरी। आ रहा है, थैंक यू बेटा, थैंक यू अनफाल। Understand? EQ and IQ? The price of emotional illiteracy. Illiteracy means कि if you are illiterate, emotionally illiterate doesn't mean कि आपके पास बहुत हाई फाई रैंक नहीं है, आपका IQ बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छे ग्रेड लिए हैं, आप हाई जॉब्स करते हो, बहुत अच्छी आप कंप्यूटर इंजीनियर हो, आप डॉक्टर हो, आप अपनी फील्ड में बहुत अच्छे हो, यू हैव अ गुड नॉलेज, बट क्या इमोशनल इलिटरेसी अगर आप में है, हैविंग वेरी हाई आईक्यू बट इमोशनली आपने अपने आप को मैनेज नहीं किया, इमोशनल इंटेलिजेंसी बेसिकली आपको बैलेंस पर्सनैलिटी देती है, आईक्यू आपको बैलेंस पर्सनैलिटी नहीं देगा टिल यू लर्न इमोशनल इमोशनल लिटरेसी। नो, इलिटरेसी अगर इमोशनल होगी क्या होगा? पुअर चाइल्ड रेयरिंग, प्रॉपरली आप अपने बच्चों को केयर नहीं कर पाओगे, बिकॉज आप अपने इमोशंस को, अपने एंगर को, अपनी लव को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी हेट को, ठीक है, एंड अदर इमोशंस। तो एट दैट टाइम ऑब्वियसली ब्रोकन फैमिलीज होंगी, ब्रोकन होम्स होंगे, पुअर चाइल्ड रेयरिंग होगी, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होंगे, ओबेसिटी, जब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होंगे ऑब्वियसली आपके क्या होगा? आइसोलेशन, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगी। जब आपका एटीट्यूड नहीं लोगों के साथ अच्छा होगा, आप रिलेशनशिप हैंडल नहीं कर सकोगे, दूसरों के इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड करोगे, तो क्या होगा? आइसोलेशन हो जाएगी। आइसोलेशन के बाद क्या है? आपकी डिस्क्रिमिनेशन होगी, डिस्क्रिमिनेशन और डिप्रेशन, और डिप्रेशन में चीजें हो जाती हैं, आपकी ओबेसिटी भी हो सकती है, पहले डिप्रेशन लिखना चाहिए था, डिप्रेशन में ओबेसिटी हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस, हाइपरटेंशन एंड कार्डियक डिजीजेज हो जाती हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हो, आप डिफरेंट जॉब्स करते हो, जॉब से ड्रॉप आउट, इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हो तो आप डिफरेंट जॉब से ड्रॉप आउट हो जाओगे। एनिमोसिटी, एनिमोसिटी क्या होता है? एनिमी से निकला हुआ है कि आप दिल में बहुत गुस्सा रखते हो, अदावत, सॉरी दैट इज अ गुड वर्ड, अदावत रखते हो, और उसको आप फॉरगेट एंड फॉरगिव नहीं करते, यू आर नॉट एबल टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। तो एट दैट टाइम क्या होगा कि ऑब्वियसली वो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, अगेन इट विल कॉज अ स्ट्रेस, क्रोनिक स्ट्रेस होगा, और क्रोनिक स्ट्रेस से आपको डिफरेंट डिजीजेस की तरफ लेके जाएगा, ड्रग्स एंड एल्कोहल, लोनलीनेस एंड माइट बी सुसाइड। मार्कर ऑफ इमोशनल इलिटरेसी, क्या मार्कर होते हैं, क्या कैसे वो इंसान आपको किस तरह का होता है? डिकोटिमस थिंकिंग, डिकोटिमस थिंकिंग ये होती है बेटा कि you either like something or dislike, either love someone or either hate someone,
ठीक है, हेट करते हो तो इंतहा दर्जे की, लव करते हो तो यू आर मैट, ठीक है, पढ़ते हो तो इतना पढ़ते हो कि यू डोंट केयर अबाउट योर स्लीप, डोंट केयर अबाउट योर हेल्थ, और नहीं पढ़ते तो बिल्कुल छोड़ देते हो। दिस इज बिल्कुल क्या इसको बॉर्डर लाइन कहते हैं पर्सनैलिटी को। और आपकी थिंकिंग डिकोटमिस है, यू आर नील आल आर नील आल आर नन, सॉरी आल आर नन। इंटॉलरेंस, इंटॉलरेंस है, यू कैन वही इमोशंस को हैंडल नहीं कर सकते, उसके लिए आप के पास आपका एक मार्कर है, आप इंटॉलरेंस आपके अंदर है। पास्ट इम्पोज्ड ऑन प्रेजेंट, अगेन आपके अंदर एनिमोसिटी एंड आप पास्ट को फॉरगेट नहीं करते। क्विक बट स्लो भी रिस्पॉन्स, आपका रिस्पॉन्स क्विक होता है, रादर देन दैट यू वेट फॉर दैट, ठीक है, आप वेट नहीं करते उसके लिए, आप क्विक रिस्पॉन्स देते हो। दीज आर मार्कर्स। आप इन क्वालिटीज पे आप किसी को अंडरस्टैंड कर सकते हो कि हाँ जी ये इमोशनली इलिटरेसी है। मैकेनिज्म ऑफ इमोशनल इलिटरेसी, बेसिकली ये हमारा इमिगडाला है जो नेगेटिव इमोशन का रिस्पॉन्सिबल है, ये हाईजैक कर लेता है। हाउ इट हाईजैक्स, आपके इमोशन को हाईजैक कर लेता है बिफोर ये कॉर्टेक्स तक जाते हैं, इनको हाईजैक करता है। कैसे करता है अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। मेन इलिटरेसी का रिस्पॉन्सिबल कौन है? अमिगडाला, ओके, अमिगडाला। नाउ you can see from this slide the speedy low road and thinking high road. ये थोड़ी सी साइकोलॉजी की लैंग्वेज है, नॉट मेडिकल लैंग्वेज, लेकिन मैं आपको इसको मेडिकल लैंग्वेज में लेके जाती हूँ। नो, होता क्या है, होता ये है कि आपके जो सेंसरी ऑर्गन है, योर 5 सेंसरी ऑर्गन सेंसरी रिस्पॉन्स लेकर आते हैं। फ्रॉम सेंसरी रिस्पॉन्स आपका थैलेमस पे आता है, थैलेमस से डायरेक्ट इट गोज टू एमिगडाला। लो स्पीड स्पीडी लो ट्रैफिक, स्पीडी लो ट्रैफिक, यू अंडरस्टैंड। सेंसरी, आपने कुछ देखा, आपने कुछ सुना, कुछ गलत सुना, कुछ गलत देखा, आपको गुस्सा आया, या आप फियर में हो गए हो, या फिर यू आर वेरी एक्साइटेड एट दैट टाइम, यू आर सीइंग समथिंग, योर एक्साइटमेंट आर एट हाई लेवल, योर एंगर इज एट हाई लेवल। एट दैट टाइम क्या होता है कि सेंसरी आपका रिस्पॉन्स आता है थैलेमस से, थैलेमस से डायरेक्ट एमिगडाला में आता है। और एमिगडाला इज नॉट not supposed to act, but it is acting without passing this response to prefrontal cortex। यहीं पे एक्ट हो रहा है। आपका एक वर्निक्स एरिया होता है स्पीच का, और दूसरा वर्निक्स होता है, और दूसरा एक और एरिया होता है ब्रोंकास होते हैं। दोनों एरियाज के अलावा एक और एरिया होता है नीचे, एसेसरी स्पीच एरिया, जहाँ पे एमिगडाला, अगर आप बोलना चाहते हो, गुस्से में एक्ट करना चाहते हो, तो क्या होता है कि आप एक्ट कर देते हो, किसी को मार दिया, गुस्सा करके बोल दिया, तो विदाउट रिस्पॉन्स, आपकी रीजनिंग नहीं हुई, आपने थिंकिंग नहीं की, और बगैर सोचे समझे आपने एक्ट कर दिया, बोल दिया या फिर रिस्पॉन्स कर दिया। दैट इज स्पीडी लो रोड। समझ में आ गई कि क्या है? ये इमोशनल इलिटरेसी है कि आपका एमिगडाला हाईजैक कर रहा है। नो, थिंकिंग हाई रोड, थिंकिंग हाई रोड इज दैट एमिगडाला रिस्पॉन्स आपकी सेंसरी से आया, सेंसरी से आपका थैलेमस से एमिगडाला, एंड एमिगडाला से आपका सेंसरी कॉर्टेक्स से
प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जब आता है रिस्पॉन्स, तो क्या है कि थिंकिंग होती है, रीजनिंग होती है, आपको टाइम मिल जाता है, ठीक है। एट दैट टाइम वो जब थिंकिंग एंड रीजनिंग होती है लॉजिक के साथ, तो देन योर रिस्पॉन्स इज सेंसिबल। दैट्स वाई यू नो, ये हमारी रिलीजन इस्लाम में ये कहा गया है कि जब आपको गुस्सा आए तो खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो खड़े हो जाओ, लेट जाओ, पानी का ग्लास पियो। इज इट राइट? तो ये सारा जो है बेसिकली व्हाट इज दिस, कितना प्यारा हमारा मजहब है, पूरी साइंस है। यहाँ पे आपका क्या है कि बेसिकली यू गेट अ टाइम, आप टाइम लेते हो फॉर थिंकिंग। वो जो टाइम है बैठने से बैठे हो तो लेट जाओ, वो जो टाइम मिला है एट दैट टाइम आपको जब गुस्सा आता है तो आप ले, तो वो जो टाइम है आपने अमिगडाला से हाईजैक नहीं हुए, आप प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में आपकी रीजनिंग हो गई। अंडरस्टैंड? अंडरस्टूड बेटा? Speedy low road and high thinking. Okay, thank you. Any problem? No. How you will improve your emotional intelligence? Pay attention to self and other body language. दूसरों अटेंशन दो, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज, उनके इमोशंस को देखो। लिसन मोर, स्पीक लेस। ओके, आपने ज्यादा खुद बोलना है, सॉरी, दूसरों को बोलने देना है, खुद कम बोलना है। ऑब्जर्व हाउ यू रिएक्ट टू द पीपल। आप जजमेंटल तो नहीं हो जाते, ऐसा तो नहीं है दूसरे लोगों की जो ओपिनियन होती है उसको आप अपने ऊपर रख लेते हो और उस पर जजमेंटल हो जाते हैं। नो, ऑल फैक्ट्स यू मस्ट नो अबाउट ऑल फैक्ट्स। आप खुद फैक्ट्स देखो। किसी भी इंसान के लिए आप ने अगर जज करना है तो खुद से जज करो, रादर देन दैट कि आप दूसरों की ऑब्जर्वेशन को खुद कैरी करो। लुक एट योर वर्क इन्वायरमेंट। वर्क इन्वायरमेंट में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमिलिटी। हम्बल होता है ना बेटा, एक ह्यूमैनिटी होती है। ह्यूमैनिटी तो एवरीवेयर इट इज रिक्वायर्ड, ह्यूमैनिटी इज रिक्वायर्ड इन योर वर्क प्लेस। हम्बिलिटी इज दैट कि आप हम्बिलिटी सपोज आप दूसरों को चांस देते हो, let them shine, let them give the chance to shine। आपको पता है कि आप you are better in your studies, better in your skill, but you are giving chance to other और अपना ग्राफ लो रखते हो। that is a very good technique। इससे आपका जितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और जितना लोगों के लिए, लोगों के दिल में, इससे आपके लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगी। डू सेल्फ अवेयरनेस। थर्ड कंपोनेंट है आप कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस आपने इंप्रूव करनी है। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस करनी है, अपनी वीकनेस को जानना है, ये देखना है कि आप फेवरेटिज्म तो नहीं करते, कितने ऑनेस्ट हो आप, ये आपकी क्या है, सेल्फ evaluation है। देन एग्जामिन हाउ यू रिएक्ट टू स्ट्रेसफुल सिचुएशन। आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में प्रॉपरली रिएक्ट करते हो या फिर ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेसफुल कंडीशन में आपकी एफिकेसी डिक्रीज हो जाती है। आप उसको प्रॉपरली कैसे हैंडल करते हो, अपने इमोशन को अंडर कंट्रोल करते हो या नहीं करते। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शन। अपने एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इफ यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, अपोलोजाइज फॉर दैट। किसी को हर्ट करते हो, प्लीज अपोलोजाइज। ये आपको, इससे आप छोटे नहीं हो जाते। सॉरी करने से कोई भी छोटा नहीं होता, बट फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। If you apologize and someone forgive you and forget it, it is basically for your health
एंड सेम इज फॉर यू, फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटनेस सीखो। हम फॉरगिव तो कर देते हैं लेकिन फॉरगेट नहीं करते। काइंडली फॉरगेट करो। फॉरगिव करने से आपकी अपनी हेल्थ, सिर्फ फॉरगिव करने से अपनी हेल्थ, स्ट्रेस आपका कम नहीं होगा। देन एग्जामिन हाउ योर एक्शन विल अफेक्ट अदर। Put put yourself in her or his place. अपने आप को उसकी प्लेस पे रखो, देन एग्जामिन। ठीक है। आप आपकी सपोज यू आर एक्साइटेड और यू आर एंग्री विद समवन। आप सोचो कि वो किस कंडीशन में है। इफ ही और शी इज नॉट डूइंग प्रॉपरली, आपका सबऑर्डिनेट है बट नॉट डूइंग अ प्रॉपर जॉब और नॉट, तो उसको ट्रेस करो कि देर इज समथिंग रॉन्ग विद हिज इन्वायरमेंट, रादर देन दैट कि आप उसको अपने आप को उसकी जगह पे रख के देखो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू से, don't give others the power to control your emotion. Those are only yours, and it is only for you to manipulate. Understand? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ये सेंटेंस जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। थिंक पॉजिटिवली। Any problem? Because I am starting a new topic. Any problem, dear students? No, thank you. Can I start the new topic? Okay. New topic is metacognition. Metacognition mm, is know about knowing. कैसा लगा ये वर्डिंग, नो अबाउट नोइंग? मुझे मैंने बस जब फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे अजीब सा लगा था, ये क्या है नो अबाउट नोइंग? आप कितना जानते हो? इट हैपन्स। अब मुझे समझ आ गई है। इट हैपन्स लॉट ऑफ टाइम कि आप, if you are preparing for your exam or preparing for your sub stage or anything, any quiz, you are giving lot of time to a chapter because it is very important, it is very difficult, and main thing is that कि you don't know कि आप कितना जान गए हो। आप some students are so obsessive. Obviously, all the medical students, they are obsessive, obsessive to some extent. वो अपनी studies में obsessive थे तो उन्होंने इतने marks लिए और इन colleges में medical and BDS में वो उनका admission हुआ। अब obsession इतना हो गया कि you don't know about your knowing. आप कितना इस चैप्टर को जानते हो, you don't know. आप उसको बार बार रिवाइज कर रहे हो और बार बार पढ़ रहे हो। ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता रहा है। आप how you, what is my objective is to tell you what is metacognition. How do I teach my students about metacognition? आपने कैसी करनी है metacognition? What metacognitive strategy should I use? ये बेटा सारा का सारा आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड है ऑब्वियसली, कि आप कितना जानते हो, कैसे पढ़ना चाहिए आपको, और कैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए। इट इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है। Definition, understanding of our own learning process is metacognition. हमने खुद कितना लर्न किया है, हमारा अपना लर्निंग कितनी हुई है, हमने कितना सीखा है इस चैप्टर से। हम आर यू एबल टू डू MCQs? Are you able to do some for any quiz or SCQs? ठीक है। आप एक चैप्टर को पढ़ते हो तो आपको इतना नॉलेज होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड
मेटाकॉग्निशन, आप अपनी अपनी लर्निंग के बारे में जानो कि मेरी कितनी ग्रिप हुई है इस चैप्टर पे, या इस टॉपिक के ऊपर मेरी कितनी ग्रिप हुई है। लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना पता चला है, दैट इज मेटाकॉग्निशन, हाउ मच यू नो अबाउट दैट। नाउ metacognition, thinking about your own thinking, um, uh, text plus thinking, real thinking, that is real, जो text होता है और thinking आप करते हो, that is basically real thinking, and thinking your inner voice कि आप again you are thinking कि how perfect I am. Metacognition, if you are doing your metacognition according to your preparing your chapter or your topic on metacognition basis, then it will increase your capability, थोड़े टाइम में ज्यादा पढ़ोगे, self regulation, you are able to regulate yourself. Is it okay? Understand beta? Learner autonomy, again you are autonomous, it is up to you. आप रटा लगा के पढ़ना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, आप किस तरीके से इसको पढ़ना चाहते हो, आप एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ना चाहते हो, एससीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हो, इट्स अप टू यू। डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर्स एंड लर्नर, टीचर्स और लर्नर आपको थोड़ी सी डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, जस्ट थोड़ा सा बताते हैं, कोई बुक्स का आपको रेफरेंस दे देते हैं, बाकी आपने सेल्फ रेगुलेशन खुद करनी है। आपकी ऑटोनॉमी है, मेटाकॉग्निशन के सारे कंपोनेंट आई विल टेल यू लेटर ऑन, वो आपने खुद कंप्लीट करने हैं। असेसिंग योरसेल्फ, आप किसी भी टॉपिक पे फर्स्ट टाइम जब पढ़ते हो तो क्या होता है, आप असेस करते हो। सपोज आपने कोई एफएससी में टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो आपने एफएससी में नहीं पढ़ा हुआ, या पहले आपने कभी नहीं पढ़ा हुआ, तो वो टॉपिक आपके लिए क्या होता है, नॉइस, बिल्कुल नया होता है। फिर सेकंड स्टेज में जब आप थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हो, एक रीडिंग करते हो, जब नया होता है तो आप उसको डिफरेंट एंगल से देखते हो कि मैं इस ये नया है तो मैं इसको इट इज क्वाइट डिफिकल्ट और इजी इन दैट एंगल। आफ्टर दैट आप क्या कहते हो, उसको एक रीडिंग देते हो, दो रीडिंग देते हो, तो देन आप कहते हो कि नो आई एम लर्निंग इट। अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, लाइक इन योर लर्नर फेज, आप लर्निंग फेज में हो। आफ्टर दैट जब आप इसके ऊपर फर्दर पढ़ते हो, इसको फर्दर प्रैक्टिस करते हो, नो आई एम अ प्रैक्टिशनर, नो आई कैन प्रैक्टिस इट। अब आप इस काबिल हो गए हो कि यू कैन सॉल्व सम एमसीक्यूज, एससीक्यूज, और यू कैन गिव demonstration. No, you are not able to give demonstration other, but you are able to understand it. अब आप प्रैक्टिशनर हो गए हो, देन आई एम एन एक्सपर्ट। आखिर में आप जब प्रैक्टिस करते हो तो उसके बाद आप एक्सपर्ट हो जाते हो। नाउ यू कैन डेमोन्स्ट्रेट इट टू अदर्स। ये आप कोई भी टॉपिक जब लेते हो तो ये 4 फेजेस आती हैं उसमें। नो 3 main phases in learning: planning phase, monitoring phase, and evaluation phase. Planning phase, this is the phase in which the learner is preparing to tackle what is to be learned. What I know it before. Already मुझे इसका कितना पता है, how it is important for MCQs or SCQs, how much it is interesting, ये interesting है तो मेरे लिए इसका interest कितना है, मेरी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इसका कितना इंटरेस्ट है, दैट इज योर प्लानिंग फेज। प्लानिंग के बाद सेकंड फेज आ जाती है योर मॉनिटरिंग फेज। बेटा मॉनिटरिंग फेज बेसिकली ये होती है कि यू आर वाइल
Going through the material to be learned, learner can monitor their learning by asking the following question. Following question: How am I grasping the topic? मैंने कितना इसको पढ़ लिया है? आप अपनी खुद थिंकिंग करते हो, खुद उसको रिपीट करते हो, सेल्फ रेपिटेशन करते हो, और सेल्फ रेपिटेशन में आपको पता चलता है कि कितनी चीजें आपने छोड़ दी हैं और कितनी चीजें आपने रिपीट कर ली हैं, कितनी चीजें आपके ब्रेन में हैं और कितनी चीजें आप छोड़ गए हो. देन यू हैव अ सेकंड लुक. आप उसको क्या करते हो, जो चीजें आपने छोड़ दी होती हैं, आप फिर एक दोबारा उस टॉपिक के ऊपर एक दोबारा उसको देखते हो, स्टडी करते हो, एक सुपरफिशियल स्टडी करते हो, एंड देन अगेन यू मॉनिटर योर सेल्फ इन योर ब्रेन. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप पिक कर लेते हो, आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को राइट डाउन कर लेते हो और उनको दोबारा से सीखते हो, लर्न करते हो. एवेल्युएशन फेज. ड्यूरिंग दिस फेज, आफ्टर कंप्लीटिंग व्हाट वाज to be learned, learner can ask themselves the following question: How should I correct my errors? अब आप कहाँ पे, अब आप evaluate अपने आप को कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि मुझे अपने errors को कहाँ पे correct करना है, और मैंने अपना गोल, मैंने इस टॉपिक को जिस सेंस में पढ़ना था, एटोनमी आपकी है, यू आर एटोनमस. यू वांट टू रीड इट इन एमसीक्यू स्टाइल, और यू वांट टू रीड के मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट आना चाहिए. आप चाहते हो कि मुझे इतना होना चाहिए कि मैं इसको एलेबोरेट कर सकूं प्रॉपरली इन एससीक्यू. दैट इज योर एटोनमस, और आप उसमें अपने आप को उसके अकॉर्डिंगली एवेल्युएट करोगे कि हाउ शुड आई करेक्ट माई सेल्फ, एनीथिंग आई डोंट अंडरस्टैंड. सबसे पहले तो आप ये ट्रेस करोगे, इज देयर एनीथिंग विच आई कांट अंडरस्टैंड. और सेकंड क्या आएगा कि हाउ शुड आई करेक्ट माई सेल्फ, हैव आई accomplished my goal. आपने कंप्लीट कर लिया अपना गोल की नहीं. देन मेटाकॉग्निटिव स्ट्रेटेजी फॉर मेडिकल स्टूडेंट. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या होती हैं, जब वो उनके पास मटेरियल, ओब्वियसली आपके पास मटेरियल, अ लॉट ऑफ मटेरियल, आपके पास कोई छोटी एक बुक, आधी बुक नहीं है जिसको आपने स्टडी करना है और पास हो जाना है. आपके पास नंबर ऑफ बुक्स हैं जिनको आपने पढ़ना है. तो अब आपने क्या करना है, इसका ट्रिक क्या होता है, क्लियर अबाउट योर टास्क. आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है, कितना पढ़ना है, किस बुक से पढ़ना है, विच इज योर प्रॉपर बुक, रेफरेंस बुक. आई एम नॉट सेइंग कि आपको अगर एक छोटी बुक से पढ़ के या किसी ऐसे ऑथर की बुक पढ़ के जिसने बहुत ज्यादा एलेबोरेट नहीं किया होता है, बट योर टारगेट इज ये दैट यू मेमोराइज ऑल थिंग, ऑब्वियसली इट्स अप टू यू कि आप वो बुक यूज करो. ठीक है, डिटरमिन स्ट्रेटेजीज, ग्राफिक, ऑर्गेनाइजेशन, ड्राइंग. आप ड्राइंग करो, इसके नोट्स बनाओ. ठीक है, ऑर्गेनाइज करो इसको. हाईलाइट की पॉइंट जो जहां जहां की पॉइंट है उनको हाईलाइट करो. दैट इज अ वेरी गुड हैबिट. ठीक है, हाईलाइट करोगे, नेक्स्ट रीडिंग दोगे तो क्या होगा, वही पॉइंट जो आपने हाईलाइट किए होंगे वो आपको क्या है, आप दोबारा से रिवाइज करोगे. आप बाकी को रिवाइज करना छोड़ दोगे, हाईलाइटेड पॉइंट्स को रिवाइज करोगे और पूरा जो टॉपिक है आपकी ग्रिप में आ जाएगा. आइडेंटिफाई व्हाट यू नो एंड व्हाट इज अनफेमिलियर वर्ड. ऑब्वियसली अनफेमिलियर वर्ड्स को आप आइडेंटिफाई करोगे, उनके मीनिंग देखोगे. नाउ सेट गोल्स एंड डेडलाइंस. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपके प्रॉफ की तैयारी कर रहे हो, आपका गोल, आपने एक टाइम टेबल बनाया है, अपने गोल सेट करने हैं उस कैलेंडर के अकॉर्डिंगली कि 13 तक मुझे आई हैव टू कवर बायोकेमिस्ट्री, फिर 18 तक मुझे ये वाले टॉपिक कवर करने हैं, 19 तक ये टॉपिक. देन जो आप डेडलाइन दो, अपने आप को डेडलाइन दो, रादर देन दैट कि आप जी प्रॉफ की तैयारी हो रही है. नो, आप एक 1 घंटा 2 घंटे लगा के प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ, जहाँ पे आपका गोल टॉपिक के साथ सेट हो, डेट के साथ डेडलाइन दी हो. तो उस डेडलाइन को आप कोशिश करो कि उस तक पूरा करो. ये नहीं है, ऐसा गोल नहीं सेट करो जो अचीवेबल ना हो.
ओके ये ऐसा गोल नहीं सेट करना कि 2 दिन में हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेनी है, एक दिन में हमने कोई बहुत लेंथी टॉपिक को कवर कर लेना है उसको प्रॉपरली। तो जो अचीवेबल गोल नहीं होंगे, यू विल नॉट अचीव दैट। तो आपको डिप्रेशन होगा, आपको स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस आपको डिप्रेशन पे ले जाएगा, सो दैट फर्दर आपकी एफिकेसी डाउन हो जाएगी। अंडरस्टैंड? गोल ऐसे सेट करो जो अचीवेबल हो। अंडरस्टैंड बेटा? Goal must be achievable and there should be some deadline which you are giving. Determine how to overcome the distraction. जो आपको distraction आती हैं due to any family matters, due to any other issues, आपकी उनको health issues हो जाते हैं और घर में कोई issue आ जाता है, कोई guest आ जाते हैं, तो उनको आपने overcome कैसे करना है उन distraction को। Understand? Beta, any problem? Kindly tell me. Any question, dear students? No, ma'am. Did you understand something? No, ma'am. Yes, ma'am. Thank you, thank you, thank you. Okay. Understand metacognition? Time हो गया. Metacognition का पता चल गया बेटा? Understood? Or now you are able to understand how to learn and how to prepare your topic? How to not get distracted with YouTube. Okay. Okay. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone.